یہ بات ہے جون 13 1983 کی، جب ایک عام سا بچہ کراچی کے ایک عام سے ہسپتال میں پیدا ہوا۔ اس وقت کون کہہ سکتا تھا اس بچے کو دیکھ کر کہ یہ اپنے ملک کی تاریخ بدل دے گا، لوگوں کی مدد سے ہی لوگوں کو انصاف دلائے گا، ان کا وسیلہ بنے گا، ان کے مسائل حل کرے گا اور ان کو ایک نئی زندگی بھی دے گا۔ نہیں دوستوں، میں کسی پولیٹیکل لیڈر، کسی سائنٹسٹ یا کسی پروفیسر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے انسان کی جس کی کوئی خاصا تعریف نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی خاصا ذکر کرتا ہے، بلکہ لوگ ان کے کام کو سراہنے کی بجائے اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ظفر عباس کی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پورے ملک میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یتیم خانے بنائے، اولڈ ایج ہومز بنائے، ایمبولینس سروسز بنائی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک آئی ٹی انڈسٹری کی بھی بنیاد رکھی جس میں ہزاروں بچہ ہر سال پڑھتا ہے، فری لانسنگ کرتا ہے اور اپنے گھروں کو سنبھالتا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ظفر عباس کے بارے میں۔ تو ان کی کہانی شروع ہوتی ہے جب یہ نرسری کلاس میں تھے۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ یہ نرسری سے ہی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اپنا لنچ شیئر کرتے تھے اور ان کے ماں باپ ان کو یہ سمجھاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ اپنا لنچ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کرو اور ان کا بھی پیٹ بھرا کرو۔ جہاں پر دوسرے بچوں کے پیرنٹس انہیں یہ سکھاتے تھے کہ بچوں اپنا لنچ خود ہی کھاؤ اور دوسروں کو مت کھلانا، وہاں ظفر عباس کے پیرنٹس نے انہیں سکھایا کہ بانٹنا ایک کتنی اچھی چیز ہوا کرتی ہے۔ شاید یہی جذبہ تھا کہ وہ ایک سوشل ورکر بنے اور اپنے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے وہ آج یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایلیمنٹری ایجوکیشن کراچی سے ہی ایک نارمل اسکول سے کی اور اپنی گریجویشن یونیورسٹی آف کراچی سے کی۔ انہوں نے سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں MBA کیا اور ہر بچے کی طرح یہ اپنا گھر سنبھالنے کی وجہ سے ایک جاب پر لگ گئے۔ انہوں نے وہاں پر خاصا محنت کی اور اپنے گھر کو سنبھالا جیسے کہ عام لوگ بہت اچھے سے اپنے گھر کو سنبھالتے ہیں۔ بچپن سے ہی ان کے اندر کچھ بڑا کرنے کا جذبہ تھا اور یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ انہوں نے اپنے گھر کو بھی ایک ذمہ دار بیٹا بن کر سنبھالا۔ یہ بات ہے 2009 کی، جب کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کا نظام تھا۔ ان کے کلاس فیلوز بھتہ خوری کے ڈر سے اور ٹارگٹ کلنگ کے ڈر سے ملک سے باہر جانے کی کوششیں کر رہے تھے اور بہت سے لوگ چلے بھی گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی ٹھان لی اور انہوں نے یہیں پر سوشل ایکٹیوسٹ بن کر، ایک سوشل ورکر بن کر انہیں اپنی عوام کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جب انہوں نے یہ بڑا قدم اٹھانے کی بات کی تو لوگوں نے انہیں بہت ڈی موٹیویٹ کیا، انہیں تانے مارے اور ان کو سمجھایا کہ لوگ بہت بے حس ہیں، کوئی کسی کی مدد بغیر لالچ کے نہیں کرتا، یہ لوگ بہت ہی خود غرض ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ شاید بھول گئے تھے کہ جہاں پر 50% برے لوگ موجود ہیں، وہیں پر اس سے زیادہ اچھے بھی ہیں جن میں دوسروں کے لیے مدد کرنے کا جذبہ ہے اور دوسروں کو سنبھالنے کی بھی طاقت ہے۔ انہوں نے ان سب چیزوں کا بہت ہی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور 2009 میں انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن، جس کا نام JDC ہے، اس کی بنیاد رکھی۔ JDC کا مطلب ہے جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیلف ویلفیئر آرگنائزیشن۔ لوگوں نے اس کے نام سے سمجھا کہ یہ شاید ایک اسپیشل کمیونٹی یا کسی خاص لوگوں کے لیے فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے، لیکن ظفر عباس نے ثابت کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ فاؤنڈیشن ہر عام آدمی کے لیے ہے۔ اس وقت جہاں اتنے لوگوں نے اتنی فاؤنڈیشنز بنا کر کروڑوں روپے کا گھپلا کیا اور اس ملک سے فرار ہو گئے، وہیں ظفر عباس نے اپنی فاؤنڈیشن سنبھالی اور اس کی پراپر اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے لوگوں کو یقین دلایا کہ آپ کا پیسہ بالکل صحیح جگہ لگ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ کر بڑی بڑی کمپنیز ان کے ساتھ جڑ گئیں اور انہیں فنڈنگ دینا شروع کر دی تاکہ یہ ان لوگوں کی مدد کر سکیں، جیسے کہ GFS، ایزی پیسہ، یونیلیور، SSGC اور بہت سی کمپنیز انہیں ڈونیشنز دیتی ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جو سب سے پہلے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ سیلاب کی سچویشن ہو، چاہے وہ زلزلے کی سچویشن ہو یا کوئی اور آفات۔ ہاں، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری مہنگائی حکومت نے ہی کی ہے۔ ظفر عباس نے بتایا کہ کچھ مافیاز بھی اس میں شامل ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا ملک اکنامک کرائسس کے ساتھ ساتھ گورننس کرائسس سے بھی گزر رہا ہے۔
जो चीज रमजान के पहले हफ्ते 150 की है और हुकूमत ने उसका एक रेट दिया हुआ है, वही फ्रूट माफिया उसको 600 रुपए किलो पर बेच रही है, जो कि एक आम आदमी के साथ जुल्म है। जब लोगों को इस चीज का पता लगा और जफर अब्बास ने इस चीज का बाइकआउट किया कि फ्रूट्स हम आज से नहीं खाएंगे, तो लोगों ने इसकी आवाज पर लब्बैक कहा। और ये हमारे मुल्क की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने बाइकआउट करने का फैसला किया। इसके अलावा बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने, सोशल एक्टिविस्ट ने, बड़े बड़े एक्टर्स ने इनका साथ दिया और पूरी एक कैंपेन चलाई सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी कि हम अब फ्रूट नहीं खाएंगे क्योंकि माफिया ने इसका रेट बहुत ऊपर कर दिया है। इस बाइकआउट का नतीजा ये हुआ कि जो रेट्स गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए थे, तो आसमान पे जो प्राइसेस चली गई थी वो वापस उन्हीं रेट्स पर आ गई और वही चीजें लोगों के लिए दस्तयाब हो गई। अब बात करते हैं इनके एक जेडीसी फाउंडेशन की कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, ये लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इनका विजन क्या है और ये किस सिमत में जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी एम्बुलेंस सर्विस की। 2009 से लेके 2020 तक कराची शहर में 1 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए और इनमें डेथ रेशो रहा 2.43%। जेडीसी फाउंडेशन की एम्बुलेंस ने हर पेशेंट की मदद की है, चाहे वो डायलिसिस का पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर से लड़ रहा हो या फिर उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो। जेडीसी फाउंडेशन की एम्बुलेंसेस 24 घंटे लोगों की खिदमत में मौजूद हैं। इनकी 120 से भी ज्यादा एम्बुलेंसेस लोगों को सहूलत फराहम कर रही है और यहां तक कि उनके कफन दफन की भी जिम्मेदारी इन्होंने बिल्कुल मुफ्त उठाई हुई है। इसके बाद बारी आती है इनके इमाम हुसैन दस्तरखान की। 2010 में इन्होंने इसकी बुनियाद रखी और पाकिस्तान में 6 शहरों में इन्होंने इसका इनेकाद किया। यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है कि 2020 के बाद लोगों के घरों में गुर्बत आ गई है, तो इन्होंने बेड़ा उठाया कि ये लोगों की मदद करेंगे और उनका पेट भरेंगे। इस टाइम ये 6 शहरों में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं आपको बताता चलूं कि इसमें ये ना किसी नस्ब, ना किसी नस्ल, ना कोई मजहब, किसी की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते और सिर्फ इंसानियत के नाते उनको फ्री खाना खिलाते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो इन्होंने इसकी भी जिम्मेदारी उठाई है। इन्होंने एजुकेशन सेंटर बनाया है जो कि बच्चों को प्रॉपर तालीम देता है और उन्हें एक जिम्मेदार शहरी बनाता है। ये चाहते हैं कि इनका मुल्क यानी पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बने और लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हों। अगर हम बात करते हैं आईटी सेंटर की, तो कराची में इन्होंने आईटी सेंटर की तामीर की है जहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चा आईटी की तालीम हासिल कर रहा है और वो फ्रीलांसिंग करके और प्रोजेक्ट्स पकड़ के वो अपना घर पाल रहे हैं। और इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारे यहाँ से जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं वो हर महीने 200 से 300 डॉलर कमाते हैं और अपने घर में बैठकर काम करते हैं। अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो जेडीसी इसमें भी आगे है। पूरे मुल्क में बेशतर शहरों में इन्होंने डायग्नोस्टिक लैब्स कायम की हैं ताकि लोग अपने टेस्ट करवा सकें और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और हाल ही में इन्होंने एक नुमाइश में एक डायग्नोस्टिक लैब कायम की है जहां पर इन्होंने करोड़ों की मशीनरीज लगाई है। और इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा लें कि वहां पे एक तो इलाज फ्री होता है और अभी वो ऑपरेशनल नहीं हुई है, लेकिन वहां पे हर महीने 600 से ज्यादा बंदे अपना डायलिसिस बिल्कुल मुफ्त करवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस जमाने में लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को सड़क पर छोड़ जाते हैं, वो भी खुले आसमान तले। जेडीसी फाउंडेशन ने इन लोगों का भी बेड़ा उठाया और ओल्ड एज होम्स कायम किए। इनके 2 ओल्ड एज होम्स इस टाइम कराची में चल रहे हैं जहां पे ये बुजुर्गों को रखते हैं। उनके लिए एक बेहतरीन कम्युनिटी बनाई हुई है जहां पर उनको मुफ्त खाना मिलता है और जो सहूलियात उन्हें मैसर होनी चाहिए उनके बच्चों की तरफ से वो चीज़ प्रोवाइड करती है। आपको मैं बताता चलूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 46 लाख मतलब 46 लाख बच्चे यतीम हैं जिनका कोई संभालने वाला मौजूद नहीं है। तो इन्होंने ये देखते हुए ऑर्फनेज होम बनाया है जिसकी ज़मीन इन्हें जीएफएस एक कंपनी है जिनकी बहुत बड़ी सोसाइटी है, उन्होंने फराहम की है ताकि बच्चे एक छत तले रह सकें, अच्छा पढ़ सकें और इस मुल्क का असासा बन सकें। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है
क्योंकि इसके अलावा अगर ये बच्चे अपने हाल पर छोड़ दिए जाएं तो या तो ये सोशल क्राइम्स करेंगे, या तो ये आपके बैगर्स बनेंगे, या तो फिर ये आपकी सोसाइटी को डिस्टर्ब करेंगे। इन्होंने हर वो काम किया है जो एक गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें अपनी गवर्नमेंट की तो उन्होंने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं है। वो अपने पेट भर लेंगे तो लोगों का पेट भरने की तरफ आएंगे। मैं किसी को टॉन्ट नहीं करा, लेकिन मैं एक असलियत बता रहा हूं। अब आप जान ही चुके होंगे कि ये अजीम हस्ती कितना काम कर रही है। इन्होंने हाल ही में बैगर माफियाज के खिलाफ बहुत बड़े कदम उठाए और उनका पर्दाफाश किया कि कैसे कोई भिखारी खुद ही अपने बच्चों के हाथ पैर काट कर उन्हें सड़क पे डाल देते हैं ताकि वो भीख मांगे, और वो दिन के 3-3 हज़ार रुपए कमाते हैं, जो कि आजकल एक ग्रेजुएट आदमी नहीं कमा सकता। शायद यही वजह है कि इन पर 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए गए, मतलब ये कि इनको मारने की 3 दफा कोशिश की गई। आप ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसे इंसान को जो लोगों की मदद करता है उनको कौन मार सकता है। बात यही है कि जफर अब्बास ने बड़े बड़े माफिया से पंगा लिया और उनके साथ डायरेक्ट हो गए और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है कि वो हमारी सोसाइटी को डिस्टर्ब ना करें और इसको अपने हिसाब से चलने दें। और जब ये सच बोलते हैं तो ऐसे जो इविल लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके सीनों पर तीर लगते हैं कि ये हक और सच बात क्यों कर रहा है। क्योंकि ऐसा दौर आ गया है कि लोग हक और सच की बात नहीं सुनते, बल्कि शैतानी ताकतें जो कि उनके दिमाग में चल रही हैं वो सिर्फ उन्हीं को फॉलो कर रही हैं। दोस्तों, ये रमज़ान का महीना है और इसमें बहुत से लोग चैरिटी करते हैं। आप अगर तो अपने ख़ानदान में कुछ लोग मौजूद हैं जिनके सर पे बाप का साया नहीं है, कोई यतीम बच्चे हैं या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी रोज़गार नहीं है, तो आप उन लोगों की मदद करें। हमें चाहिए कि हम ऐसी फाउंडेशंस को सपोर्ट करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा इसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप देख सकें।